अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें ताकि मैं शुरू कर सकूं। ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे रेक्टिफाई कर दूं बिफोर वी बिगिन क्लास। सिर्फ ये चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दें कि यू आर लिसनिंग मी लाउड एंड क्लियर। जी सुनहरा, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कंफर्म कर दें प्लीज़ कि यू आर लिसनिंग टू मी लाउड एंड क्लियर तो मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है कि प्लीज़ आप में से दोनों में से कोई भी कंफर्म कर दे इफ़ यू आर लिसनिंग मी लाउड एंड क्लियर। ज़रूरी नहीं है आप मैं माइक में बोलें, यू कैन जस्ट कंफर्म इट ऑन ग्रुप चैट। ओके, नाउ इफ यू आर hearing me, just confirm it please. Okay, fair enough. So okay, let's begin before we are too late, because we cannot wait for everyone to turn up. Okay, so last time हमने ये स्लाइड मिस की थी जिसको मैं अब आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपको स्लाइड नज़र आ रही है? जी प्लीज़ यस नो तो कम से कम लिख दें मैं ताकि कंफर्म कर सकूं। यस, ओके, थैंक यू। सो लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, और उसमें ये स्लाइड मैंने कहा था कि आई विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। सो सिचुएशन एनालिसिस में ये कहता है कि जी प्रोजेक्ट नेम, ये बायलाइन, प्रोजेक्ट विजन, मिशन, project aim, objectives, project USP. USP stands for unique selling proposition. ये आप पता नहीं आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा है। ये बेसिकली मार्केटिंग की टर्म है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, स्टेक होल्डर ग्रुपिंग, स्टेक होल्डर नीड्स एंड इश्यूज। So this is basically the basic plan which you are trying to make up with for communicating with your stakeholders. Communication strategy. Um, Aims, objectives, key messages, key communications channels and tools, what we aim to achieve, measures of success, prioritization. These are various strategies which you have to look at while making your plan for communication. Activity plan, key activities, responsibilities, by when, priorities, resources required,
is it SMART? SMART stands for स्ट्रेटेजिक यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये बेसिकली मैनेजमेंट की बुक्स में अगर आप इसको देखेंगे तो एक और वर्ड यूज होता है स्पेसिफिक। मेजरेबल, अटेनेबल और अचीवेबल दोनों दोनों वर्ड्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पर रेलेवेंट लिखा है, लेकिन मैनेजमेंट में इसको रियलिस्टिक कहते हैं। एंड टाइम स्पेसिफिक मीन्स टाइम बाउंडेड, तो वट एवर objectives you are coming up with for achieving your goals, you have to make sure that you have smart objectives. Smart objectives जो बनते हैं, they are supposed to be specific, measurable, attainable, achievable, realistic and time bound. यहाँ पर चूंकि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए उसने इसको जरा सा चेंज किया है, but main target still remains the same, but it has to be strategic, measurable, attainable, relevant, and time specific. Evaluation may tools and processes for evaluation of the strategy and plan. Focus on objectives, measures of success and impact. So these are जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके साथ आपका जो कम्युनिकेशन प्लान है उसकी अलाइनमेंट को आपने इवेलुएट करना होता है कि इट इज aligned with your organization's objectives. Then you can move ahead with your communication plan. Sustaining the project activities, resources and responsibilities for sustaining the project. तो किसी भी चीज को शुरू करना is not a big deal normally, but उसको sustain करना for a long period of time, it is not that easy for everyone to accomplish that task. So यहाँ पर sustaining the project भी जो है वो भी dependent है किसी हद तक आपकी communication strategy के ऊपर. This is in a brief the communication strategy and plan which we have just discussed. और एक और चीज जो मैं while we were talking about the cost management, तो एक चीज और जो miss हुई थी, it was padding, if you recall. तो padding का मैंने word use किया था, लेकिन I missed to discuss it in the last lecture, so I thought that I better make sure that you get the idea of what is padding. So padding जो है extra time or cost added to an estimate because the estimator does not have enough information. तो मैंने आपको बताया था कि जो आपने contingency reserve जो रखना होता है normally, चाहे शेड्यूल के हवाले से हो या चाहे कॉस्ट के हवाले से, it has to be between 10 and 15%, not more than that. तो जब आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो you just estimate in the air. वो जो estimation होती है वो padding कहलाती है. What to do if information is not available? Address with reserves. Through risk management, estimators need to identify and openly address uncertainties with the project manager. What is the difference between reserves and padding? Obtained through actual calculations and not an arbitrary guess. तो जो arbitrary guess है वो padding कहलाता है, और जो आपने calculations से जो नताइज अखज़ किए होते हैं उनको they are called reserves. So you have to have a very thorough understanding of estimating your cost, schedule and everything based on the calculations, the actual calculations, rather than arbitrary guess. Because guesswork, अब ये तो चलें ठीक है कि अगर आपने इसकी डबल कॉस्ट आपने एस्टिमेट कर भी ली, सपोज करें कि जी 1 लाख का प्रोजेक्ट था और आपने कहा कि जी हम 1.5 लाख की एस्टिमेट दे देते हैं, वो जो 1.5 लाख का एस्टिमेट है, सपोज करें कि फॉर XYZ रीजंस चीज़ें जो है वो फिर कंट्रोल में नहीं आती आपके, तो और वो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो फिर बढ़ जाती है, तो यू विल बी इन अ ह्यूज मेस. उसके लिए फिर आपको अपनी मैनेजमेंट को भी और कस्टमर को इस अमाउंट को जस्टिफाई करना, इट विल बी अ पेन इन द नेक. So never go for this kind of estimation while
calculating scheduling or cost management. So these were the two things which we missed in the last lectures. Now let's start the risk management. That is today's topic. So what is risk? We will be talking about it. Risk management is इसके लिए project manager has to be proactive rather than reactive. तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में क्या होता है कि प्रोएक्टिव अगर आपकी अप्रोच होगी तो यू विल कम व्हाट में you will not be held on this point. You will keep moving forward. Lekin if you are reactive, the moment you face any uncertainty, you will have to go back and then come to this path again. So this is as a good project manager, you are supposed to be proactive in your risk management strategy, how it can be done, and what are the tools and techniques for handling the risks involved in the project. We will discuss like this. That अब ये triangle जो है इसमें if you look at it तो ये आपको नज़र का धोखा नज़र आएगा because this kind of triangle is impossible. Unlikely, even chance. आपने toss किया and try to come up with something, or maybe likelihood. So 1 in 6 chance that you will get 4 if you draw a इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं I don't know, I don't recall. Anyways, and likelihood is 4 in 5 chance. Certain तो ये जो 4 in 5 chance तक जो है यहाँ से लेके 0 से लेके 4 in 5 chance तक की जो है likelihood of any problem or issue in a project is purely based on probability, and you will be dealing with from 0 to 4 points. When it becomes certain, so it means it is not a risk, it is an issue. वो issue को जो है वो उसके लिए कहा जाता है कि nip the bird in the nest. So issue को तो आपने जैसे ही rise होता है उसी वक्त उसे kill करना है. But when you are executing a project, so the probability of coming across a risk that has to be calculated. वो जो calculation है वो किस तरह से होगी, we will be talking about it in this slide. जब कभी project के negative consequences हैं, so it is a threat, and if the consequences of that risk are positive, it's an opportunity और आपने उसको कैश करना होता है उस opportunity. Like for example, suppose करें आपने COVID-19 से पहले अपना प्रोजेक्ट जो है उसको प्लान किया था, तो at that time petrol prices were like over 100 rupees, 112 rupees तक थे. तो nobody had an idea कि what would it be like post COVID, I mean COVID-19 के आने के बाद oil prices की क्या situation हो जाएगी, and you can see for yourself it has turned upside down altogether. So now it is जो 6 महीने पहले तक आपके लिए एक negative risk था या threat था, you didn't know कि what could be the price of oil in the days to come. तो वो थ्रेट जो है वो अब अगर अब जब एग्जीक्यूशन में आए तो पता चला कि वही थ्रेट जो है वो आपकी एक अपॉर्चुनिटी बन गया. तो नाउ आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी. सो आपने उसे कैपिटलाइज कैसे करना है, दैट इज द पर्पस ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर टू डील विद. Now, what is the definition of a risk? A dictionary definition of risk is the possibility of loss or injury
Project risk involves understanding potential problems that might occur on project and how they might impede project success. Risk management is like a form of insurance. It is an investment. जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं प्रोजेक्ट्स से, सॉरी, आप अपनी ये जो लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, या गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, या घर की इंश्योरेंस होती है, या बिजनेस की जो इंश्योरेंस होती है, तो बेसिकली आप अपना जो रिस्क है उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं टू दी इंश्योरेंस कंपनी के जो इवेंचुअलिटी या जो प्रॉब्लम आपने फेस करनी है उसकी एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट पे करके आप इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं, उसका प्रीमियम पे करते हैं, एंड यू आर सेव्ड फ्रॉम बिग डिजास्टर. तो दैट्स व्हाट रिस्क इज ऑल अबाउट. तो ये जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो यही काम करते हैं कि वो हर चीज़ को इंश्योर करते हैं. यहाँ जो इंश्योर की स्पेलिंग है वो ई से है, नॉट आई. आई वाला इंश्योरेंस मैं नहीं कह रहा हूँ, ई वाला इंश्योर कह रहा हूँ. तो यू हैव टू मेक to ensure that if anything happens, you have a reasonable plan in hand so that you overcome the risk which is involved in your project. So this is the proactive approach of project manager to overcome the risks involved in project. Now, risk management planning. Why do you need to have risk management planning? Avoiding surprises, problem anticipation, overcoming crisis, and for all this you need to be proactive. So why do you plan for risks is that because you are a proactive project manager, so you don't want to confront surprises. You anticipate problems beforehand and before the crisis arise. तो क्राइसिस में जो है वो फिर जुगाड़ लगानी पड़ती है. तो क्राइसिस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए थ्रू प्रॉपर प्लानिंग. Now, what are the various sources of risks? There could be technical risks, कि आप जो प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं उसमें किसी भी किस्म का कोई टेक्निकल हिच आ जाती है. फॉर एग्जांपल लाइक आपका एंड टाइम पे कंप्यूटर क्रैश कर जाता है, तो आपके पास उसका स्टैंड बाय प्लान जो है वो तो यही है कि यू शुड हैव one or two computers in reserve so that your overall, and this I'm talking specifically in the context of software project. Suppose तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं और उसमें अगर आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाता है तो यू आर. अब इसके लिए तरीका क्या होगा कि एक तो ये कि आपके पास क्लाउड में है स्पेस अवेलेबल हो जहाँ आप जितना आपने काम किया वो वहाँ पर सेव हो रहा हो, ताकि यहाँ पर क्रैश हो तो क्रैश होने की सूरत में आपके पास दूसरा कंप्यूटर आता है तो आपको वो जो काम आपने पहले से किया हुआ था वो कहीं लॉस ना हो जाए. तो उसको आपने चूंकि क्लाउड में सेव किया हुआ था, तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ मीटिंग टेक्निकल इवेंचुअलिटीज. देन फाइनेंशियल इवेंचुअलिटी यही है कि उसके लिए आपके पास कंटिजेंसी और मैनेजमेंट रिजर्व्स जो है वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए. देन सोशियो इकोनॉमिक जो है, जैसे इस वक्त की जो सिचुएशन है जैसे कोविड-19 वाली, तो this again is a risk, a huge risk, which you are working on the project and all of a sudden आपका पूरा जो लेबर फोर्स थी जिस पे आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, it is confined in the whole labor force is confined into their homes, and you are now confined yourself in your own home. So this is again this is a social and economic problem. Economic in the sense कि आपको जो है वो आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो पूरी कोलैप्स कर गई है, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसने आपको मजबूर किया है टू remain confined within the premises of your own home.
So this is a very valid example of risk, which is again unforeseen in the initial stages. But if you would have planned this kind of eventuality, you would be able to overcome what could be done in that case. देन कॉन्ट्रेक्चुअल, तो कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करते हैं अपने कस्टमर के साथ, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. आपने उसके एक एक पेज को बहुत थॉरली पढ़ के उसे साइन करना होता है. अगर आपने बगैर पढ़े उसको साइन कर दिया तो whatsoever has been done is done, because once you sign it, then it becomes your own baby. और फिर आपने उसके प्लसेस और माइनसेस को आपने ही भुगतना है. सो आपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अभी तक तो देखा नहीं होगा, बट एक्चुअली यू हैपन टू हैव अ चांस टू वर्क इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें उसके एक एक पेज के ऊपर दोनों पार्टीज, जो कस्टमर, जो सेलर है और जो बायर है, मैं अब ये सेलर और बायर की जो टर्म यूज कर रहा हूँ, this is specifically used by the PMI as well for the one who is the customer and the one who is the vendor. They both enter into a contractual agreement. उसका जो एग्रीमेंट बनता है उसके हर पेज पे आफ्टर थोरो thorough understanding of the contract, both the parties have to sign. अगर वो साइन डॉक्यूमेंट नहीं है तो इट इज़ नॉट वैलिड. अगर उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में as a valid document आप प्रूव नहीं कर सकते कि this was supposed to be agreed between the two parties. So if you are aggrieved party, so you will not be able to contest it in the court of law. So you have to have a very thorough understanding of the contract, and this is again going to be a huge risk if you overlook or skip any page in between while signing the document. और इवन कल्चरल डिफरेंस, अगर आपका जो सामने काउंटर पार्ट है ही इज फ्रॉम सम अदर कंट्री, तो वहाँ पर कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं दे ऑल्सो पोज ह्यूज रिस्क इन मीटिंग योर प्रोजेक्ट problems. And from within the organization, you can expect resistance to the change. That is also going to be a source of risk involved in execution of the project. जिस तरह से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया था, इसी तरह से एक रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी होता है. तो मोर और लेस तकरीबन तमाम ही किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यू कैन कन्फ्रंट दीज काइंड ऑफ रिस्क्स, और इनको आपने डॉक्यूमेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. तो टेक्निकलिटीज में उसमें नीचे से अगर हम ऊपर लेके चलें तो उसमें कहता है कि जी क्वालिटी, तो आप अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है तो आपका जो आउटकम होगा उसमें क्वालिटी के इश्यूज होंगे. परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, जो आपने मशीन या जो भी आपका डिज़ाइन है उसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी किस हद तक है नहीं है. कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरफेसेस, तो जब हम ये वाला जो पॉइंट है ये आप इसको रियलाइज करें उस वक्त से जब हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास जो हम कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ इंटरफेसेस आते हैं वहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी का सामना होगा. तो और ये एज ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर आपको सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पे फोकस करना होता है वो भी यही जहाँ जहाँ दो मशीन्स आपस में इंटरफेस कर रही हैं. इसकी एक एग्जांपल अगर हम लाइव लेने चाहें तो अक्सर आपने देखा होगा रास्ते में जाते हुए व्हील अलाइनमेंट लिखा हुआ नजर आता है. तो व्हील अलाइनमेंट में क्या है कि जो चारों व्हील हैं गाड़ी के, अगर तो वो सिंक्रोनाइज्ड हैं टाइमिंग बेल्ट के साथ, टाइमिंग बेल्ट आपके इंजन के साथ कनेक्टेड होती है, तो अगर वो उसके साथ प्रॉपरली अलाइंड है तब तो कोई इशू नहीं है. अदरवाइज अगर एक व्हील की भी स्पीड दूसरे व्हील की स्पीड के साथ मैच नहीं कर रही होगी तो या तो आपकी गाड़ी जो है वो राइट
की तरफ जारी होगी या लेफ्ट की तरफ जारी होगी, एंड चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बिकम मोर प्रोनाउंस्ड। सो ये अलाइनमेंट जो होती है, ये बेसिकली जहाँ जहाँ इंटरफेसेस होते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के, वहाँ पर ये इश्यूज आते हैं। यू हैव टू बी very observable on these kind of situations while executing the project. Then टेक्नोलॉजी, तो आपकी जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं या जो आप जो चीज़ बनाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो करंट टाइम्स के साथ मैच करनी चाहिए। अगर वो उसके साथ मैच नहीं कर रही होगी तो देयर विल बी अ मिसमैच बिटवीन दी टेक्नोलॉजी जो आप लेकर आ रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो दिस इज अगेन गोइंग टू पोज अ टेक्निकल थ्रेट। एंड रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर जो बात हो रही है वो उसकी स्कोप की बात हो रही है। तो अगर आपने स्कोप सही नहीं समझा हुआ है टेक्निकली, if you are not strong in your technical understanding of the subject, then you are going to face the consequences. So you have to have a very thorough understanding of the requirements of the project. So जो scope है वो आपके पास बिल्कुल loud and clear होना चाहिए। फिर आता है जी एक्सटर्नल, इसको भी फिर हम नीचे से ऊपर लेके चलेंगे। तो वेदर इज नॉट इन योर कंट्रोल। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात कहूँ या बात करने की कोशिश करूँ, अगर मैं वेदर को, एक वर्ड है वेदर और एक है क्लाइमेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। वेदर जो होता है वो नॉर्मली जो आपके डे टू डे चेंजेस होते हैं वो वेदर कहलाता है, और क्लाइमेट जो है वो ओवर द ईयर्स, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इज क्लाइमेटिकली हॉट, या इसमें हॉट वेदर जो है वो ज़्यादा प्रिवेल करता है। तो जो क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज हॉट हॉट, एंड क्लाइमेट ऑफ मे बी कनाडा अगर हम बात करें तो इट इज़ कोल्ड। तो कनाडा को तो बल्कि आइस डेजर्ट भी कहा जाता है। सो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इट इज़ कोल्ड। कोल्ड इसलिए कि 9 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स वहाँ पर जो है वो सर्दी रहती है, और वही चीज़ रिवर्स होती है हमारे इन्वायरमेंट में। तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट कहलाएगा, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड कहलाएगा। लेकिन जब हम वेदर की बात करेंगे तो वेदर का कहा कहला जाएगा डे टू डे आपका जो क्लाइमेटिक जो आपके जो चेंजेस आते हैं वेदर कंडीशंस में, उसको हम वेदर कहते हैं। तो वेदर जो है इट इज़ एन एक्सटर्नल थ्रेट which can hamper your project. Customer is out also outside the project. मार्केट कंडीशंस, आप मार्केट में इस वक्त अगर कोई चीज़ लेकर आते हैं, जैसे अगर आपने अक्सर न्यूज़ सुनी होगी कि जितने भी मूवीज़ बन चुकी हैं और दे वर सपोज टू बी पर्दे की जीनत बनना था जिन मूवीज़ को, तो वो तकरीबन सारी मूवीज़ जो है जो बनाने वाले थे, प्रोड्यूसर्स थे इसके, उन्होंने उसे रोक लिया बिकॉज मार्केट इज नॉट वायबल फॉर देम टू मेक द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन अक्रॉस द ग्लोब। सो दिस इज अगेन अ ह्यूज रिस्क। रेगुलेटरी ये कि आपके जो जब हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो रेगुलेटर्स होते हैं नॉर्मली वो पूरा साल सोए रहते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट में ख़ास तौर पे इसलिए भी सोए रहते हैं कि जब एक दफ़ा चीज़ बिगड़ जाए और फिर जब वो आपकी प्रेमिसेस पे आके छापा मारेंगे तो उनके लिए फिर 2 नंबरी के चांसेस या दरवाजे खुल जाते हैं। सो दे वेट अंटिल द लास्ट मोमेंट कि वो आपके प्रोजेक्ट को किस तरह से रोक सकते हैं, तो वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज अगेन एक्सटर्नल थ्रेट। इसी तरह से सब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सप्लायर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली एज ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा, वंस आई वाज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, तो उसमें हमारे पास 9 कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनके साथ हमने साइमल्टेनियसली काम करना था। 9 कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों रखे गए, इसमें बेसिकली जो हमारी पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम थी उसमें जो ऊपर, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक की और ये मैं बात कर रहा हूँ
समवेयर इन 1995 जब ये प्राइवेट एंड सॉरी पब्लिक सेक्टर में थी, तो पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो मेजॉरिटी वो 2 नंबर होते हैं। तो 2 नंबर इसीलिए होते हैं कि दे लाइक टू मेक मनी, और उसके लिए उन्होंने 9 कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया था ताकि प्रोजेक्ट जो है वो इतना हौच पौच रहे कि कोई अगर उसको ऑडिट करने भी आए तो वो उसको पकड़ ना सके। तो एट मैक्स अगर आपने जब भी सबलेट करना हो अपने प्रोजेक्ट को, तो मैक्सिमम 1 या 2 से ज़्यादा सब कॉन्ट्रैक्टर्स को काम असाइन ना करें। आइडियली तो एक ही को करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है, तो यू शुड गो एट मैक्स, बहुत ज़्यादा जाए तो 2, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें 9 लोग थे, और उन 9 लोगों के साथ उन्होंने अंडर हैंड डीलिंग की। और एक हमारे जो चीफ इंजीनियर थे वो नॉर्थ इस्लामाबाद से शिफ्ट हो गए क्रीक विस्टा में, और एक और जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो ही नॉर्थ इस्लामाबाद में रहते थे, तो वो वहाँ से क्लिफ्टन अस्करी 4 में वहाँ शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से काम होते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई कि आपको प्रोजेक्ट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो एथिक्स का जो एक पार्ट है जिसके तकरीबन 18 से 20 सवालात आते हैं, वो इसीलिए रखे गए हैं टू जज योर मॉरल अथॉरिटी ऑन द प्रोजेक्ट। इसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटाइजेशन। आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। अगर वो आपने प्रायोरिटीज सेट नहीं की सही से, देन यू आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक। देन फंडिंग, आपके पास फंडिंग रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए, बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन never ever think that you are going to get the funding from the top management in one go. You will be required to move from pillar to post in order to get the funding for your project. Resource, again resources, जो functional organizations होती हैं उसमें जो आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज या इवन मटेरियल रिसोर्सेज भी अगर आपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करनी है, तो उसकी टाइमिंग जो है दैट विल मैटर अ लॉट। जब आप लेने गए और उस वक्त उस वो आपका जो फंक्शनल मैनेजर है वो अगर ये कहना शुरू कर दे कि नहीं जी मुझे मेरे अपने रूटीन का जो काम है उसमें मुझे इसकी ज़रूरत है, तो यू विल बी हैंडीकैप, you will be held in abeyance because you will not be able to execute the project without the resources. And project dependencies अगर आपने सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं की गए, तो अगेन यू आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या इश्यूज आ सकते हैं? सबसे नीचे से अगर हम ऊपर लेके चलें तो कम्युनिकेशन। तो अगर आपको बहुत शुरू की अगर आपको स्लाइड याद हो जिसमें मैंने आपको आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें आपने देखा था कि ऊपर से जो है वो आइसबर्ग का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा नजर आता है, लेकिन जब आप नीचे जाते हैं समंदर में तो आपको बहुत बड़ा एक तरह से एक समझ लें कि ग्लेशियर टाइप की चीज़ होती है जो कि आप फेस कर रहे होते हैं। तो उसमें सबसे नीचे जो था वो कम्युनिकेशन था, और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इसीलिए मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर योर 90% टाइम is supposed to be used or consumed in communicating with your project team members, and you have to have a very firm grip on communicating with your project team and stakeholders and whatnot. Then controlling आपका जो internal audit का जो mechanism है, that has to be very effective in order to have complete and controlled on the project which you are working on. आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड द एस्टिमेट्स फॉर द शेड्यूलिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड योर रिस्क एस्टिमेट्स, आपकी जो बेस लाइन्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए सो दैट यू डोंट फेस एनी hiccups in your project. So this is
in very brief risk breakdown structure, तो आपने जब आप अपना प्रोजेक्ट पे काम करें तो you should look into all these areas very thoroughly, very thoroughly, because risks are basically unforeseen events. वो अभी हम और आगे देखते हैं. Questions addressed in a risk management plan, तो उसमें if you are planning for risk management, तो आपने अपने आप से ये कुछ सवालात पूछने हैं, और जो इनके जो जवाबात होंगे वो बेसिकली आपको आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है उसको बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक or not to take this risk in relation to the project objectives? What is the specific risk and what are the risk mitigation deliverables? How is the risk going to be mitigated? What risk mitigation approach is to be used? I hope कि मुझे लगता है आपको यहाँ पे वर्ड मिटिगेशन का मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, but don't worry, we will talk about it जब हम इसकी रिस्क में को हम ओवरकम करने की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर आएगा ये. मिटिगेशन का बेसिकली मीनिंग है कि उसका जो इम्पैक्ट है, जो भी रिस्क है उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना, ये कहलाता है बेसिकली मिटिगेशन. Who are the individuals responsible for implementing the risk management plan? When will the milestones associated with the mitigation approach occur? And how much is required in terms of resources to mitigate risk? So these are very basic few questions which you have to raise to your own self in order to come up with your risk management plan. If you recall, मैंने immediately after the last class जब मैंने उसको अपलोड कर दिया था तो मैंने आपको मेथड 1 2 3 की लिंक शेयर किया है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर किए हैं. सो आई थिंक कि अगर नहीं देखा तो यू मस्ट गो थ्रू इट, एंड देख लिया तो नथिंग लाइक दैट. Contingency and fallback plans, contingency reserves. So the contingency plans are predefined actions that the project team will take if an identified risk event occurs. जहाँ पर identified risk आता है तो वहाँ पर आप contingency plan को use करते हैं to mitigate the impact of the risk. And fallback plans are developed for risks that have a high impact on meeting project objectives. तो फॉल बैक का मतलब ये है कि अगर आप गिर रहे हैं तो आपने अगर एक चीज़ प्लान ए में बनाई थी तो यू शुड हैव प्लान बी हैंडी. आपके पास प्लान बी जो है वो आपके पास हैंडी होना चाहिए, सो दैट फॉर एनी रीज़न आप प्लान ए पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं आगे, तो यू शुड हैव प्लान बी. तो प्लान बी अगर आपका हैंडी है तो यू विल नॉट फॉल बैक बिकॉज यू हैव अ प्लान फॉर in case of you falling back. Risk identification. Risk identification, how you can identify various risks involved. तो brainstorming, आपने अपनी प्रोजेक्ट टीम मैनेजमेंट टीम जो है उसके साथ ब्रेनस्टॉर्म करके रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना है. डेल्फी टेक्निक, इंटरव्यूइंग, स्वॉट एनालिसिस. अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें डेल्फी टेक्निक क्या होती है. तो डेल्फी टेक्निक बेसिकली एक टेक्निक है विच इज़ यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसमें होता ये है कि आप एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं और वो क्वेश्चनेयर जो है सर्कुलेट करते हैं अमंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ये है कि मतलब अगर जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज है अगर उसके पास, जो एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है, तो आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनेयर एक बनाते हैं और उसको मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के पास अलग अलग भेजते हैं. और वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है आपस में उनका कोई लिंक नहीं होना चाहिए. अगर वो लिंक होगा तो वो एक दूसरे से पूछ के और एक ही डॉक्यूमेंट चारों मिल के सबमिट कर देंगे. They are not supposed to be knowing each other, and
नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन लेस देन 1 मिनट, सो ये किसी भी वक्त अगर डिस्कनेक्ट होती है तो आई विल कम बैक अगेन, so don't go away. We will continue after the session is over. um, so Delphi टेक्निक में एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को आप अपने क्वेश्चनर भेजते हैं और उनका जो इनपुट आती है उस इनपुट की बेसिस पे आप अपने रिस्क्स को फर्दर आइडेंटिफाई करके उसको डॉक्यूमेंट करके और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग वर्कआउट करते हैं. स्वैट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ये अभी इससे रिलेटेड भी आपको आगे स्लाइड में भी कुछ चीज़ें और मिलेंगी. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. इसमें आपने ज़रूर इन्वॉल्व करना होता है अपने आप को. एंड इंटरव्यूइंग मीन्स फेस टू फेस इंटरव्यूइंग. ये डेल्फी टेक्निक